everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. This particular video is going to be very informative and very helpful for all the NABARD aspirant basically who are preparing for the NABARD interview. Candidates have been already shortlisted for the interview, and if you guys are also preparing for the NABARD interview, this particular documentation can be very helpful, right? You can download this documentation from the Yopedia panel and read it out with lot of information it is containing with different kind of key components. Now, what is your HR round? HR round is basically showcasing your confidence level, your communication skills, your organization based knowledge, your project, internship and whatnot, right? So this documentation is also providing you this kind of information, and today we are going to discuss about very important HR questions which you can expect in your NABARD interview, right? Let's just start, guys, that what are the important HR questions for the interview of NABARD. First of all, as we guys know that NABARD is the National Bank for Agriculture and Rural Development, which is providing assistance, financial assistance to the rural development programs and to the other, I would say it's a bank of like which is taking care of the financial relations, which is taking care of the agriculture and rural development. It has been established in 1982 and is providing basically financial support, technical assistance to the rural development and to the agriculture domain. Okay, as we know that it's headquartered in Mumbai, and this is the overview basically of NABARD, which you can just have a look to that to know the better, I would say, job description and your culture fit for the NABARD. What are the key responsibilities of NABARD? This is basically executing infrastructure project in rural areas and क्वालिटी को इंश्योर करना विद कंपाइलेंस ऑफ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, फिजिबिलिटी को कंडक्ट करना, फिजिबिलिटी लाइक स्टडीज एंड प्रोजेक्ट को इवेलुएट करना, टीम्स के साथ कोलैबोरेशन करना फॉर द इम्प्लीमेंटेशन टू इनोवेटिव सॉल्यूशंस, राइट? यू कैन जस्ट हैव अ लुक गाइस, फंक्शंस एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा. क्रेडिट प्रोविजंस है, ठीक है, आरआरबीज डेवलपमेंट रोल है, ये डेवलपमेंटेशन में इनिशिएटिव्स लेने में, इनोवेटिव उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये काम कर रहा है. सुपरवाइजरी रोल ऑल्सो, इट्स अ सुपरविजन बॉडी और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव एंड रीजनल रूरल बैंक्स थ्रू इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है. वेरियस स्कीम्स ऑफ NABARD ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, किसान क्रेडिट कार्ड, dairy entrepreneurship development scheme, these are some schemes basically you should know. Soil health management program and agriculture marketing infrastructure. Okay, various schemes of NABARD for rural development, वो था agriculture के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए, that is किसान credit and lot more things. Also for the rural development, self help group, that is SHGs, bank linkage program, watershed development program, rural innovation fund RIF, you need to be aware, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली, ठीक है. एंड क्या रोल है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर इनोवेशंस के लिए एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में थ्रू RIDF NABARD ने बहुत ज्यादा रोड्स के लिए, इरिगेशन सिस्टम के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए फंड रेज किए हैं, ठीक है, एंड कनेक्टिविटी को एनहांस किया है बेसिकली, रिड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ओके, agriculture innovations are there and small scale industries are there, right? Now some of the times we do not have that kind of financial assistance that we can start a industry on a bigger level, but NABARD is that a body, a statutory body which is working under these all concept and domains, right? Let's just discuss out what are the important HR questions. See, this is the table of content what we are going to be cover in this particular video. Basic informations we have just covered, some schemes we are going to be covered, we just have discussed, and related to professional experience, expected question for behavioral and situational, बहुत important part है, competency से related, teamwork और leadership से related, communication skills, problem solving and decision making से related, work ethics, motivation and personality, and conflict resolution related. All right. Now, first of all, general HR question related to NABARD. Tell me something about yourself. Very important question when you have to introduce yourself, right? आप NABARD के बारे में क्या जानते हो, आप क्यों काम करना चाहते हो NABARD में, what are your strength, weaknesses, ठीक है, how do you handle stress and pressure. Now guys see, जब भी आपका general HR question होता है related to any kind of organization, specifically this NABARD, if I have to talk in this context, general HR question में आपकी generalization check की जाती है, that what is your perspective to look the things,
टू सी द थिंग्स बेसिकली, राइट। नाबार्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, क्या आपको मोटिवेट करता है नाबार्ड को ज्वाइन करने के लिए, उसमें उसका विजन, मिशन एंड उसके जो भी स्कीम्स हैं जिसने लॉन्च की हैं, जो अभी तक उसने डेवलपमेंट एंड ऑल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, वो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हॉबीज क्या है आपकी, ये आपके जर्नल क्वेश्चंस में आते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। आप स्ट्रेस और प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस, राइट। एंड चैलेंजेस आपने अभी तक कोई फेस किए हो आपकी प्रीवियस जॉब में, या फिर अगर कोई ऐसा चैलेंज आता है रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट इन नाबार्ड, हाउ डू यू हैंडल दिस, these kinds of questions are related to like in the general HR questions, ठीक है। why should we hire you, आपको क्यों हायर करना चाहिए फॉर द इंजीनियर पोजीशन, एंड क्या मोटिवेट करता है आपको अपना अच्छे से काम करने के लिए, आप अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करोगे टू मैनेज द डेडलाइंस, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आपको बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज योर बेसिक नॉलेज आपकी चेक करता है। नाबार्ड स्टैंड्स फॉर व्हाट, राइट, फुल फॉर्म, ठीक है। वो दो डोमेन्स के लिए काम कर रहा है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसके लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हेन इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड 1982, राइट, क्या इसके अंदर स्कीम्स आती हैं, एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट स्कीम्स और आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्कीम्स, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो उससे ही आपके क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, दैट इज प्राइमरी मैंडेट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है रूरल डेवलपमेंट में, एंड सिग्निफिकेंस क्या है रूरल नाबार्ड के रीफाइनेंसिंग का, ठीक है। कब और क्यों नाबार्ड जो है एस्टैब्लिश हुआ था, नाबार्ड की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, नाबार्ड का सोर्सेस ऑफ फंडिंग क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है रूरल एरियाज में, ठीक है। मेजर अचीवमेंट बताओ नाबार्ड की रिसेंट ईयर्स में, विजन क्या है, नाबार्ड विजन फॉर 2030, प्लीज रीड इट आउट, राइट। नेक्स्ट, योर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर फंक्शंस ऑफ नाबार्ड। अब ऑब्वियसली आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, उसके फंक्शंस, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो नाबार्ड के फंक्शंस क्या है, नाबार्ड के क्या रोल प्ले करता है रूरल इकोनॉमी में, ठीक है, एंड कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबीज को कैसे सपोर्ट करता है नाबार्ड, नाबार्ड ने रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए क्या उसका रोल है, ठीक है। risk management in agriculture and rural development, monitoring, supervision of NABARD, what are the supervision, invigilations, inspection schemes of NABARD, right, how does it overviewing, how does it monitoring to that development schemes which is implementing or not, right. These are some functional questions. How does NABARD support financial literacy in rural areas, and key components क्या है NABARD की capacity building initiative के, फंडिंग प्रोजेक्ट को NABARD कैसे मॉनिटर करता है और उसका क्या इम्पैक्ट है, नाबार्ड की इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में फॉर एग्रीकल्चर क्या है, पहले कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स यूज होते थे फॉर द एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग एंड बहुत सारी चीजें, दीज डेज क्या हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि दिस टाइम नाबार्ड ने टेक्नोलॉजिकल टूल्स को, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को एग्रीकल्चर के लिए एज अ डेवलपमेंट कैसे यूज किया है, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ नाबार्ड, राइट। नेक्स्ट वी कैन सी द स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं जो विच कम्स अंडर नाबार्ड, जो नाबार्ड ने इंप्लीमेंट की हैं या इंट्रोड्यूस की हैं, यू शुड अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। अगर आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड उसकी स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में नहीं पता है, उसको अभी से बहुत अच्छे से रीड करना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग हो या कुछ भी लाइक दैट, तो दैट यू कैन डू लाइक दैट, ऑलराइट, that is going to be very important. So if I have to be talk like that for the expected questions for schemes for agriculture development, that you can do like that, किसान क्रेडिट स्कीम के बारे में वो फार्मर्स को कैसे बेनिफिट कर रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है डायरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम के, और नाबार्ड का क्या रोल है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में, नाबार्ड कैसे सपोर्ट कर रहा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, पर्पस क्या है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। कोई भी दो जो है एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स बताओ नाबार्ड के, एंड नाबार्ड कैसे माइक्रो इरिगेशन इनिशिएटिव को फैसिलिटेट कर रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सपोर्टेड बाय नाबार्ड, एंड कंसेप्ट क्या है नाबार्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप फंडिंग, ठीक है। नाबार्ड की कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग को हाईलाइट करो, दीज आर सम स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चन फॉर नाबार्ड और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
ऑल्सो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी सिमिलरली आपको स्कीम्स पता होनी चाहिए. ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, ठीक है. नाबार्ड की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द रूरल अपलिफ्टमेंट. RIDF का क्या कंट्रीब्यूशन है, नाबार्ड के इन्वॉल्वमेंट क्या है रूरल हाउसिंग स्कीम्स में, एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है नाबार्ड के लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम्स में. नाबार्ड कैसे सपोर्ट करता है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर्स को, फाइनेंशियल लिटरेसी को, एंड नाबार्ड का जो कोलैबोरेशन है विद NGOs फॉर रूरल डेवलपमेंट. नाबार्ड स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट. सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द HR डोमेन जो नाबार्ड से आपसे पूछे जाएंगे. In this particular video we have just covered basically general HR question, basic HR questions in context with NABARD, agriculture development related schemes, rural development related schemes. These 4 to 5 domains we have covered in this particular video. In a coming video, that is going to be part 2 of this part only, be continuing with that video also, and we are going to be discuss such more important domains of HR questions. Till then, watch that video and just practice test. All the very best.